سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت پر امریکہ کا رد عمل آ گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے، ایسا کہنا تھا میتھیو ملر کا۔ پاک بھارت مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، بھارتی پرامن اور فسادات سے دور رہیں۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ۔ پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری ہم نہیں کرتے۔ امریکہ آزاد، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت پر امریکہ کا رد عمل آ گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے۔ پاک بھارت مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، بھارتی پرامن اور فسادات سے دور رہیں۔ شفاف انتخابات چاہتے ہیں، پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنما یا جماعت کے طرفداری نہیں کرتے۔ اسلام آباد پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افتخار درانی کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر افتخار درانی گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر پی ٹی آئی رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افتخار درانی کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر افتخار درانی گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ارکان نے ملک میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ اجلاس کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ کو سینٹ میں بریفنگ کے لیے بلایا جائے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ اراکین کا ملک میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ان کیمرہ بریفنگ اجلاس کا مطالبہ۔ دی آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 سینٹ میں پیش۔ اراکین کے احتجاج پر چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی ترمیمی بل 2023 پاکستان، سول ایویشن بل 2023 اور پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل 2023 کی منظور۔ سینٹ اجلاس میں سانحہ باجوڑ پر بحث کے دوران وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات پوری طرح دوبارہ سر اٹھا چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ باجوڑ سانحہ کے متاثرین کی مالی امداد کے لیے وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ عبدالغفور حیدری، ہدایت اللہ، سینیٹر مشتاق، طاہر بزنجو، بہرامند تنگی اور دیگر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پارٹیز کانفرنس یا پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا کر ذمہ داروں سے بریفنگ لی جائے۔ بعض عناصر سیاست چمکانے کے لیے قومی اداروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ حج جمرہ انضباط بل 2023 متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس جمعہ 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے دہشت گردوں کو واپس لانے اور جیلوں سے رہا کرنے والے قوم سے معافی مانگیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اصلاح کا راستہ اپنانا چاہیے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جاری فنڈز ابھی تک فاٹا پر خرچ نہیں ہوئے۔ کیوں ہم نے ان دہشت گردوں سے جو پاکستان سے مائیگریٹ کر چکے تھے، ہم نے کیوں مذاکرات کیے؟ ہم اندھے ہیں؟ ہم عقل سے آری ہیں؟ کیوں ان کو واپس لایا گیا؟ کیوں ان دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا؟ کس کا قصور ہے یہ؟ کیوں کیا گیا ایسے؟ تو قوم سے معافی مانگے گا آج؟ اس طرح کا واقعہ اگر میری حکومت میں ہو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی لیڈر سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ اپنی جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپنی کریکشن کے لیے ہمیں ایک راستہ اپنانا چاہیے۔ 71 بلین ایک سال میں اس مد میں خیبر پختونخوا کو گیا، لیکن یہ 71 بلین کا تو کوئی حساب لے یا 500 بلین کا کوئی حساب لے کہ اس میں کہاں خرچ کیا گیا خیبر پختونخوا میں۔ قومی اسمبلی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 مزید ترامیم کے ساتھ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ ترمیمی بل کے تحت کوئی ڈس انفارمیشن آن ایئر نہیں کی جا سکے گی۔ کسی بھی چینل کے پروگرام کا کانٹینٹ ٹیمپرڈ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 2 اضافی شقوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور۔ کوئی ڈس انفارمیشن آن ایئر نہیں کی جا سکے گی۔ متعلقہ فریق کا موقف شامل نہ ہونا بھی ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گا۔ براڈ کاسٹ میڈیا کا لائسنس 20 سال، ڈسٹریبیوشن لائسنس 10 سال کے لیے ہوگا۔ 29A کے نئے سیکشن کے تحت 10 لاکھ جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Amendment Bill 2023 be passed. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. तरमीमी बिल में डिसइंफॉर्मेशन की तशरीह भी शामिल कर दी गई है। ऐसी खबर जो काबिल तस्दीक न हो, गुमराह कुन, मनगढ़ंत, साजबाज से तैयार करदा या जाली हो, डिसइंफॉर्मेशन होगी। किसी जाती, सियासी या माली मुफाद की खातिर या किसी को हिरासा करने के लिए दी गई हो, डिसइंफॉर्मेशन के जुमरे में आएगी। मुतासरा शख्स का मौक़िफ़ भी उसी नुमाया अंदाज में नशर होगा जिस तरह उसके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन दी गई हो। मामूल के प्रोग्राम के दौरान इश्तिहार का दौरानिया 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, जबकि प्रोग्राम में 2 ब्रेक के दौरान इश्तिहारात का दौरानिया 10 मिनट से कम नहीं होगा। किसी भी चैनल के प्रोग्राम का कंटेंट टेम्पर्ड लोगों के साथ सोशल मीडिया पर नहीं डाला जा सकेगा। 2020 की नई शिक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी का पाबंद बना दिया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर विफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमती इश्तिहारात मुतल्लिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। अवामुन्नास इदारों और दीगर शिकायत के इजाले के लिए इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में शिकायत काउंसिल्स भी बनाई जाएंगी। शिकायत काउंसिल्स एक चेयरमैन और 5 अरकान पर मुश्तमिल होंगी। सेक्शन 6 में तरमीम के जरिए पेमरा अरकान की तकर्रुरी का इख्तियार सदर पाकिस्तान को दे दिया गया। पेमरा के इन 2 एजाजी अरकान में से एक ब्रॉडकास्टर्स और दूसरा PFUJ का नुमाइंदा होगा। पेमरा के फैसलों के खिलाफ मुतल्लिका सूबे के हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। बिल विफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब ने पेश किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि कभी तौहीन अदालत की और ना ही इसका सोचा है। मैं अपने सियासी कायद के नज़रिए पर खरा था। मुझसे नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। मुझे कहा गया पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान ना दिया तो सज़ा बढ़ जाएगी। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई कि क्योंकि उस वक़्त की तहरीक सियासी जिद्दोजहद मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में चल रही थी। मैं मियाँ नवाज शरीफ का हरावल दस्ते के तौर पर उनके साथ खड़ा था। खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, ना मेरी नीयत तौहीन अदालत की थी। मैं अपने सियासी कायद के नजरिए बयानिए पे खड़ा था। ये मेरे जैसे सियासी कारकुन के लिए तमगा है कि मेरी वफादारी का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी और कोई बात नहीं मिली। उन्होंने मेरे से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने, कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। और जिस तरह मेरे साथ रवैया रखा गया वो मेरी जिंदगी में मैं भूल नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के लोगों को चुन चुन के नाअहलियां, सजाएं, रेफरेंस, मुकदमे, गिरफ्तारियां 2017 से ये शुरू हुई। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला, अपोजिशन लीडर की भी अरकान से मुशावरत। जुम्मा के रोज़ दोबारा मुशावरती इजलास बुलाने पर इत्तफाक। राजा रियाज कहते हैं 8 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में JDA के रहनुमाओं फहमीदा मिर्ज़ा, सायरा बानो समेत जान जमाली और बा पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी शरीक हुए। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि अपोजिशन का अगला इजलास जुमा को दोबारा होगा। JDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की। 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। अपोजिशन के इत्तफाक राय के बाद वज़ीर आज़म से मुशावरत करूँगा। वज़ीर आज़म से 3 नामों पर मुशावरत हो। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर चेयरमैन PTI को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। नोटिस में वाज़ेह किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 4 अगस्त के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में वाज़ेह किया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर PTI इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। इलेक्शन कमीशन ने आपको याद दहानियों के नोटिस जारी किए। नोटिस में कहा गया है जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया, अब मजीद तोसी नहीं होगी। आपकी
की पार्टी ने तरमीम शुदा आइन की कॉपी जमा करवाई जो नाकाफी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कोई पसंद करे या ना करे अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, देखते हैं ये रिपोर्ट। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेगी। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं, तनकीद की परवाह नहीं। 6 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान को वकील, सहूलियात और अहले खाना से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है। अदालत को शवाहिद की रिकॉर्डिंग, फैसले में वजूहात शामिल करने की भी यकीन दहानी करवाई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फौजी अदालतों के मामले पर अदलिया और इंतजामिया के इख्तियारात अलग अलग होने का नुक्ता भी अहम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट मार्शल का दायरा कार अलग है। मैं इस मामले पर लियाकत हुसैन केस समेत मुख्तलिफ फैसले पढ़ूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक नहीं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालतें कानून के तहत बनी हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल आइन के आर्टिकल 175 के तहत नहीं आता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये बात है तो दरख्वास्त गुजारों का इस्तदलाल दुरुस्त नहीं हो जाता। बुनियादी हुकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक कायम होती हैं। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है। महकमा माल और FBI समेत कई इदारों में इंतजामी अफसरान फैसले करते हैं। इंतजामी अफसरान के बाद हाई कोर्ट के लेवल पर मामला अदालत में आता है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामी ट्रिब्यूनल में किसी को सजाए मौत या कैद नहीं होती। किसी भी शहरी को बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? आर्मी डिसिप्लिन की हद तक बात अलग है। फौजी अफसर को सजाए मौत भी शफाफ ट्रायल के बगैर कैसे हो सकती है? फौज के एहलकार और अफसरान भी मुल्क के शहरी हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस में चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से गवाहान की फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए फरीकैन को आज तलब कर लिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस, चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दी गई गवाहान की फहरिस्त मुस्तरद। फरीकैन हतमी दलाइल के लिए कल 11 बजे तलब। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर की अदालत में समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई। वकील ने अदालत को आगाह किया कि एक गवाह का ताल्लुक टैक्स रिटर्न से जबकि दूसरे का निजी बैंक से है। अदालत ने गवाहान को दिन 1:30 बजे तक पेश करने की हिदायत की, ताहम गवाहान पेश न किए जा सके। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम के वकला गवाहान को केस से मुतालिक साबित करने में नाकाम रहे हैं। अदालत का कहना था कि अगर कल फरीकैन हतमी दलाइल नहीं देते तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तुर्क मुआहदे के हवाले से कुछ बात करें कि तुर्क डिफेंस कंपनी के साथ मुआहदे के तहत कराची शिप यार्ड में चौथा और आखिरी बहरी जहाज भी तैयार कर लिया गया है। बहरी जहाज PNS तारिक सरफेस टू सरफेस मिसाइलों और दरमियाने साइज के अहदाफ का पता लगाने और उन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। PNS तारिक एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेरे आब और फजाई ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। ये जहाज अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइलों और मेन गन से दरमियाने साइज के अहदाफ का पता लगाने और उन पर हमला करने की सलाहियत रखता है। जहाज में सतह आब, ज़ेरे आब और फजाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लेस है और इन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियार रखता है। PNS तारिक मेलजम जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशंस करने की भी सलाहियत रखता है और कैम कॉप्टर से भी लेस होगा। ये जो जहाज है हमारा, ये इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी एयर वारफेयर की इसकी अंदर कैपेबिलिटी है और ये हर तरह के जदीद जो असलहा है जो इस वक्त एक फ्रिगेट में होना चाहिए उससे लेस है। इस पे ऑर्गेनिक हेलीकॉप्टर भी होगा जो कि अपनी इसकी रेंज जो है वो बढ़ाएगा। पहला मेलजम जहाज PNS बाबर 15 अगस्त 2021 को इस्तांबुल, तुर्किया में लॉन्च किया गया। तकरीब में पाकिस्तान और तुर्की के सदूर ने शिरकत की। दूसरा जहाज PNS बदर 20 मई 2022 को कराची शिप यार्ड में लॉन्च किया गया और उसकी तकरीब में वजीर आजम पाकिस्तान और तुर्किया के वजीर बराए कौमी दिफा ने शिरकत की। तीसरा जहाज PNS खैबर इस्तांबुल, तुर्किया में 25 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। Bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. This is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. We have signed the second phase of CPAC. I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation
that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. तुर्किया के साथ इस मंसूबे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली, कराची शिप यार्ड की अपग्रेडेशन और खुसूसी तौर पर पाक बहरिया के लिए बनाए जा रहे हैं। जिना क्लास फ्रिगेट्स के डिजाइन की बाहिमी ताउन से तैयारी भी शामिल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में दुरुस्त मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ सही अदाद शुमार के मुताबिक करवाने का मुतालिबा कर दिया है। हाफिज नईम ने मरदमशुमारी पर वज़ीर आज़म को ख़त अरसाल किया है। ख़त में कहा गया है कि कराची की आबादी को 2017 की मरदमशुमारी में आधा कर दिया गया था। हाफिज नईम रहमान ने अपने ख़त में कहा, हालिया मरदमशुमारी में लाहौर में इजाफे का तनासुब 113%, इस्लामाबाद में 90%, जबकि कराची में सिर्फ 63% ज़ाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि कराची के अक्सर शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी सिफर या ना होने के बराबर दिखाई गई। मरदमशुमारी के अमल में हुकूमत सिंध का किरदार मनफी रहा है। हाफिज नईम का ख़त में मज़ीद कहना था कि महकमा शुमारियात ने खुद 38,000 बुलंद इमारतों में दुरुस्त खाना शुमारी और मरदमशुमारी ना होने का इजहार किया है। अब आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। बारिश का ये सिलसिला 7 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फौजिया अली की इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस इस्लामाबाद समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसेगी। इस दौरान बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। कारोबारी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार है। दूसरी जानिब डॉलर बेकाबू है और सोना भी मजीद महंगा हो गया है। फॉरेक्स मार्केट में रुपए पर दबाव बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.84 महंगा होकर 289 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि बैन-अक़वामी अदायगियों के बायस इंटरबैंक में रुपए की कदर मुसलसल कमजोर हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 292 रुपए का हो गया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स जोश और एतमाद के साथ अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, जिससे इंडेक्स आज 534 पॉइंट्स इजाफे से 48,764 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। IMF डील के बाद से 100 इंडेक्स में 8,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। सोने की कीमत आज फिर बढ़ गई। फी तोला कीमत 800 रुपए इजाफे से 2,23,000 रुपए हो गई।